अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये टैरिफ पॉलिसी स्ट्राइक डाउन कर दी तो मैं कहता हूँ रिपब्लिकन पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स तहस नहस हो जाएगी. You know, we'd have to pay back trillions of dollars. We've taken in trillions. We haven't taken in billions. We've taken in trillions of dollars. We've made trade deals based on that give us, as an example, European Union, $950 billion. Japan, $650 billion. आर्टिकल 1 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ कांग्रेस इम्पोज कर सकती है टैक्सेस ऑन द पीपल, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं. वेलकम बैक, बड़ी सत श्री अकाल. इस वक्त अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की हवा टाइट हो चुकी है. हमने इलेक्शन के रिजल्ट देख लिए. वर्जीनिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी डेमोक्रेटिक पार्टी के, न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नर, न्यूयॉर्क सिटी में मेयर ज़ोहरान ममदानी डेमोक्रेट पार्टी. काफ़ी ऐसी जगहें हैं जहां पर अटॉर्नी जनरल, काउंसलर और भी काफ़ी जगहों पर मेयर डेमोक्रेट पार्टी के सामने निकल कर आए हैं. रिपब्लिकन पार्टी को पछाड़ दिया है इस वक्त. और इवन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिफीट को कबूल किया. उन्होंने कहा बिल्कुल हम हारे हैं. We just lost a couple of elections. They were very Democrat areas. Maybe won't be full. They weren't very Democrat when I ran a year ago because I did well in those areas. But we just lost an election, they said, based on affordability. Zohran Mamdani, you said that, you called him a communist. You said that if he won, you would take drastic action against New York City. What kind of actions are you looking at, and will the ICE deportations continue? Well, I think you have to look. If he is a communist, there's not going to be a lot of activity. So you wouldn't need bridges and tunnels and all the different things that were being planned for New York, I think. And look, I hope New York does well. That's all I can say. I love New York. I grew up in New York. I did well in New York. Always did well. And I hope New York does well. और आपको पता है कि ये हार की असली कारण क्या है? वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की दो पॉलिसीज. एक इमिग्रेशन पॉलिसी और दूसरा टैरिफ पॉलिसी. तो इनकी इमिग्रेशन पॉलिसी से तो दुनिया ऑलरेडी तंग थी ही थी, तभी डेमोक्रेट को इतना सपोर्ट मिला है और इतने तगड़े तरीके से डेमोक्रेट जीती है इलेक्शन. अब टैरिफ पॉलिसी पर भी क्वेश्चन मार्क उठ चुका है. ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया है. Supreme Court Chief Justice Roberts said that tariffs are taxes and that they're paid by Americans. He said this pretty clearly. And yet you're saying that this money is rolling in from other countries. How do you square those two? I was in Japan, and we have Toyota is coming in with $10 billion to build plants operated by Americans, but building plants all over the United States. Well, they left. They took our plants. They sold cars in here without tariffs. They sold cars. We didn't charge them anything. They destroyed our auto industry. We lost 50%, 54% of our auto industry to other. We used to, if you go back into the 30s and 40s, we had 100% of the automobile business. Then it started getting chopped away. But Mexico, Canada, many countries, Canada fought us very hard. The ones that don't want us to win are foreign countries that we are able now to do very well with. Those are the ones that fight it. Those are maybe people that hate our country. I think it's the most important case maybe in the history of our country. सोचो अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पॉलिसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो रिपब्लिकन पार्टी जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास बच क्या जाएगा? उनकी तो पूरी पॉलिटिक्स तहस नहस होगी. और ऐसा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि अगर हमारी टैरिफ पॉलिसी को नेगेटिव कर दिया गया तो हमें तो जो हमने पैसे अंदर लाए हैं वो वापस लौटाने पड़ेंगे. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं. It would be devastating if we lost that ruling. But before the Supreme Court issues a ruling, it could be several weeks. Are you going to lay out any new additional tariffs before? I don't want to talk about it. I'm going to hope that we win. I can't imagine that anybody would do that kind of devastation to our country. We'd have to pay back trillions of dollars. We've taken in trillions. We haven't taken in billions. We've taken in trillions of dollars. We've made trade deals based on that give us, as an example, European Union, $950 billion. Japan, $650 billion. South Korea, $350 billion. Without this, we're not talking about that kind of money. And they're okay. They're satisfied. They love us. I just left.
They all love us. So it's not like we're such bad people. But they were doing it to us until I came along. Now they don't do it to us, we do it to them a little bit. But if they took this away, we would be defenseless against tariffs from other countries. ये डेवस्टेटिंग होगा कंट्री के लिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि हमें पैसे लुटाने होंगे बाकी कंट्रीज को। जिस तरह की ट्रेड डील हमने की है, अब चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, बिलियन डॉलर्स में पैसे वापस देने होंगे। बिलियन में नहीं, सॉरी, ट्रिलियन डॉलर्स में। और इतना ही नहीं, अब जिस तरह से ये पॉलिसीज लोगों को नाखुश कर रही हैं, क्योंकि लोगों ने क्या मांगा था, महंगाई कम करो, वो लोगों को दिख नहीं रही। उल्टा टैरिफ लगाने की वजह से महंगाई बढ़ती हुई दिख रही है। क्योंकि जो आम बंदा है यार, उसकी पॉकेट अगर सस्ती नहीं हुई तो आम बंदा तो ये बोलेगा ना, मेरे को क्या दिया टैरिफ ने। तो ये हो चुका है इस वक्त अमेरिका में। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि ये इलेक्शन हम हारे हैं। तो उनको मालूम है कि यार हमारी पॉलिसीज कहीं ना कहीं लोगों को नाखुश कर रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में अब ये पॉलिसीज चेंज हो, क्योंकि अगर पॉलिसीज चेंज नहीं हुई दोस्तों, तो ये है अमेरिका। अमेरिका की जनता गवर्नमेंट ही चेंज कर देती है। आपने इलेक्शंस देख ही ली। सो इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के सामने सिचुएशन ये है कि जो टैरिफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं, क्या वो लीगल हैं कि इलीगल हैं? क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर है कि वो टैरिफ लगा सकें बिना कांग्रेस को पूछे? क्योंकि यूएस सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट ये चल रहा है कि आर्टिकल 1 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ कांग्रेस इंपोज कर सकती है टैक्सेस ऑन द पीपल। जनता पर कांग्रेस अगर टैक्स लगाना चाहे तो वो इंपोज कर सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट नहीं। तो इस वक्त प्रेसिडेंट ने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लगाकर टैरिफ लगाए हुए हैं। तो अब ये कंडीशन जो है, क्या ये लीगल है कि इलीगल है, उसके ऊपर आर्गुमेंट हो रहा है। हियरिंग चल रही है, वेडनेसडे को हियरिंग हो चुकी, और अब आगे देखते हैं इस केस का क्या बनेगा। और टैरिफ इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स, क्योंकि अब जो माल बाहर देशों से अमेरिका में आता है, अब उस पर टैरिफ लग गया है, तो आपको क्या लगता है जो बिजनेसमैन होगा वो अपनी पॉकेट से भरेगा? आम जनता भरेगी ना। अगर पहले $4 का था, हो सकता है कि अब $8 का मिले, पर वो जो कॉस्ट बढ़ी उसकी भरपाई किसने की? अमेरिका की आम जनता ने। तो यहाँ पर अब ये लीगल लड़ाई लगी हुई है कि क्या प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ इंपोज कर सकते हैं या नहीं, एज पर आर्टिकल 1 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों, अगर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये टैरिफ पॉलिसी स्ट्राइक डाउन कर दी, तो मैं कहता हूँ रिपब्लिकन पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी की इमिग्रेशन पॉलिसी से तो लोग ऑलरेडी नाखुश हैं, वो हमने ऑलरेडी देखा। अब चाहे हम नो किंग्स प्रोटेस्ट की बात कर लें, इलेक्शन के रिजल्टों की बात कर लें, और भी जो महंगाई की अगर हम बात करें, जो मेन मुद्दा था जिस वजह से लोगों ने वोट की थी कि भाई सस्ता करो माल, वो अगर सस्ता नहीं हुआ तो लोग डेफिनेटली इस वक्त नाखुश तो हैं। और ऊपर से अब ये टैरिफ पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया है। अब तो मेरे को लग रहा है कि इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी सच में सोच रही है कि यार अभी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ और हम दोनों पॉलिसी में मार खा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, और हमें आगे क्या क्या देखने को मिलता है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स ना हवा की तरह होती है, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। अभी आप देखो, जिस तरह की पॉलिसीज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आई, वो पॉलिसी जनता को पसंद ही नहीं आई। और अगर ये पॉलिसीज चेंज नहीं हुई तो हमें पता है रिजल्ट कौन चेंज हो जाएगा। तो अब देखते हैं यार आगे और क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। पॉलिटिक्स हमेशा ना सिखाती है, क्योंकि पॉलिटिक्स आपके घर में है, आप जिस जगह काम करते हो वहाँ पर है, आपके बिजनेस में है। पॉलिटिक्स के बिना दुनिया नहीं चलती। देखते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी का, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का अगला दाव क्या होगा। क्या हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे? क्योंकि दुनिया भी तो खुश करनी है। जनता अगर खुश नहीं तो किसके लिए काम कर रहे हैं। अब मिलता हूँ आपको, यार क्या यार एंडिंग नहीं हो पा रही। अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। देन चको फटे।